from the from that text context extract base only, there was a question. In second stanza, in first line, what does it refers to? So the answer you told me, like, it refers to the destruction of world. End I told of the world. same. End of world. Yes, ma'am. Yes, ma'am. End of world. I told that too. End of world. I told that same line to ma'am, and she said, you don't have to write this. You don't have to write earth or anything. You will just write world, as the in whole poem, world is only the word that is used. According to both pattern, or if I would say according to the poem, the correct answer is end of the world. According to that stanza, it is end of the world. So what should I write in the exam? Like pre-board is near. So if the same question is asked, what should I write? Right now, if your teacher is saying world, then go ahead with world. Okay. Okay, ma'am. In board exams, you can write end of the world. It will not be wrong. But that only about that stanza, because in that stanza, it is referring to end of the world. Rest everywhere, it is referred to as world only. Yes, ma'am, it was clearly written. In the entire poem, the poet is talking about the end of the world, how the world is going to get end. Understood? That's why it only refers to the end of the world, not only the world. Okay, ma'am. Okay. Yes. Thank you, ma'am. Welcome. Chalo. Now I will leave the meeting because I have another class. I suppose now I am not the host. Sakshi ma'am is the host, so I can leave the meeting nicely. I was just closing the presentation and it went off. Chalo, bye-bye everyone. Take care of yourself. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Okay, now start करें हमारा. Okay, in previous class, where did we stop? Ma'am, conservation measures of land degradation we have completed. Completed हो गया, ठीक है ना. अब हमें पढ़ना है Ma'am, how to stop soil as a resource. Yes. Yes, ma'am, soil as a resource. अब इसमें क्या है बेटा, soil as a resource. हमने पहले land पढ़ा, ठीक है ना बेटा. आज ना थोड़ा सा यहाँ पे भोपाल में लाइट का इशू है मेरे यहाँ, तो बीच बीच में ना मेरा कैमरा ऑफ हो रहा है. ऑडियो आ रहा है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी यहाँ से डाउन होती है ना, तो 1-2 सेकंड के लिए ऐसे में मेरा कैमरा ऑफ हो रहा है, ठीक है. सो इट्स ओके. और बाय चांस मैं मीटिंग से बाहर चली जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली कोई बच्चा होस्ट बन जाएगा, तो जब मैं एडमिट होने के लिए एप्लीकेशन दूंगी तो मुझे ले लेना, ठीक है. अगर फ्रीक्वेंसी लो होती है तो मैं मीटिंग के बाहर चली जाती हूँ, तो फिर मुझे वापस बुला लेना, भाग मत जाना, ठीक है. ओके, हमने लैंड के बारे में बात किया था. लैंड डिग्रेड हमने डिफरेंट टाइप, देखो हमने इतना समझ लिया कि वी कैन नॉट इंक्रीज लैंड. यस, इन एनी केस वी कैन नॉट इंक्रीज लैंड. जो लैंड है हमने ये भी देख लिया वो किस किस पार्ट में डिवाइडेड था, कितने फॉरेस्ट हैं, कितना नेट सोन एरिया है, कितना फैलो लैंड है, कितना, हमने सब देख लिया था. Yes, ma'am. हाँ बेटा, आपके इसमें विनोद नाम का कोई बच्चा है? क्योंकि मैंने इतने दिन में कोई नाम नहीं देखा, वेटिंग रूम में बैठा है, मैं तो नहीं लेती बिना उसके. तुमको किसी को फोन करे उसको बोलना रोल नंबर के साथ एंटर हो तो मैं लूंगी, नहीं तो मैं नहीं लूंगी, ठीक है. अब हमने ये सब पढ़ लिया, फिर हमने लैंड वेस्ट कैसे होता है, डिग्रेड, वो पढ़ लिया. फिर लैंड कंजर्वेशन हमने पढ़ लिया. अब हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल लैंड है वो सॉइल, उसमें किस टाइप का सॉइल है. ओके, because we know different types of soil are required to grow different thing, and even the soil combination is always different. Okay, even the soil combination is different. Now on the basis of this we will understand different types of soil. वो soil की quality क्या है, क्या grow कर सकते हैं उसमें. Okay, अब इतने सारे सॉइल में एल्यूविलियम सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है.
और उस पर ज्यादा फोकस देना है। सारे सॉइल को पढ़ना है, सब में से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं शॉर्टकट, बट एलुवियल सॉइल में से कितनी बार लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके और ये जो सॉइल प्रोफाइल दिया है ये बहुत सालों पहले पढ़ा था, इसका यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि सॉइल बना कैसे, बस उतना ही है। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में सॉइल प्रोफाइल पूरा पढ़ा है ज्योग्राफी में। Now, soil is the most important renewable natural resource. It is a medium of plant growth and support different types of living organism on the earth. The soil is a living system. Okay. अब ये तो अग्री करते हैं ना कि different type of living को support करता है. Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. अब क्या है, अब डिफरेंट टाइप में लिविंग में हम लोग आ गए, प्लांट आ गया, वाइल्ड लाइफ आ गया, स्पीशीज आ गए, सब कुछ आ गए। अब व्हाई इट इज कॉल्ड, एक सेंटेंस दिया है नेक्स्ट पेज पे, सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। हम तो लिविंग है ही है, हाउ कैन यू से दैट द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम? क्या वो ग्रो करता है? यस मैम, सॉइल इंक्रीज तो मैम लेवल में तो होता ही है ना मैम, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है उसकी। ओके, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। और किसने क्या बोला मुझे? मैम उसके अंदर बहुत सारे, देयर इज वन चाइल्ड नेम एंटर्ड विनोद, हु इज दैट? नो आइडिया मैम। ओके, आई थिंक सो दैट पर्सन लेफ्ट ओनली जब मैंने उसका नाम लिया ना। ओके, वो ग्रो कैसे करता है? पहली चीज, उसको सब चीजें चाहिए जो ह्यूमन बींग्स को चाहिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन टू सप्लाई सर्वाइव। यस, तो इसीलिए हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अंडरस्टूड? It takes millions of years to form soil up to a few centimeters in depth. जो सॉइल का ऊपर का लेयर रहता है ना, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके, सो इसीलिए हम बोलते हैं कि उसको बहुत सोच समझ के जुडिशियस तरीके से यूज करना है, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा ओवर यूज करके उसे खराब कर दोगे तो इतनी जल्दी जल्दी तो बनता नहीं है सॉइल। Okay, now relief, parent rock or a bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. ठीक है, relief features, ठीक है, जैसे हमने सॉइल प्रोफाइल में देखा पेरेंट रॉक, नीचे वाला, ठीक है ना, ये सब मिलके ओवर ऑफ मिलियन ईयर्स द सॉइल इज क्रिएटेड। टू क्रिएट सॉइल वी नीड ऑल दीज थिंग्स। Important factors in the formation of soil, various forces of nature such as change in temperature. Nowadays we can see due to global warming there is a vast change in the pattern of temperature. Yes ma'am. कौन है ये? बाप रे बाप, आज क्यों क्लास में मैम मीटिंग लॉक कर दो ना। इसको निकालूंगी तो मीटिंग लॉक करूंगी ना बेटा। पहले तो फोटो खींच लूं तो सेंटर हेड को भेजने के लिए भी काम में आएगा ना, कौन है पता चले।
साक्षी मैम को भेजने के लिए काम आएगा ना, मैसेज पे मैसेज कर रहा है मुझे। एक मिनट है बेटा, जस्ट अ मिनट, इट्स वेस्टिंग माय टाइम आल्सो। कहीं आपको दिख रहा है बेटा? आप देखो तो विनोद करके कोई, नहीं तो मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा। नहीं मैम, नहीं है कोई। नहीं है ना? नहीं है मैम। नहीं मैम। बेटा मुझे सिखाओगे मीटिंग लॉक कैसे होती है? मैम हम कभी होस्ट ही नहीं बने आज तक। अरे सिखाने को बोले पागल, तो मुझे करने को मैम नहीं पता ही नहीं है कैसे करते हैं। पता ही नहीं है मैम हम लोगों को। मिल गया मिल गया मिल गया। मिल गया, थैंक यू। एक साल से जूम पे क्लास ले रहे हो, पता नहीं मीटिंग लॉक कैसे होती है? मैम कभी होस्ट थे ही नहीं। मैं होस्ट बने ही नहीं। मैम पता है, तो बोलना इतनी देर से बताती नहीं है कि मीटिंग लॉक मैम कैसे होती है। बोल तो रही थी पर आपने फिर बोल दिया मिल गया, रुक जाओ, तो मैं फिर रुक गई। Change in the temperature, action of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स के अलावा ये सारी चीजें जो इफेक्ट करती हैं, ठीक है। टू मच वेरिएशन इन द क्लाइमेट होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा रनिंग वाटर होगा, फ्लो स्पीड होगा तो इरोड हो जाता है, ठीक है। विंड होता है, ग्लेशियर्स होता है, ठीक है। सो ऑल दिस डीकम्पोजर्स, सो ये सारी चीजें हैं जो सॉइल की क्वालिटी और फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। On the basis of the factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical, physical properties, the soil of India can be classified into different types. अब soil of India जब हम classify करते हैं different types of soil in India, सबसे पहले soil का thickness कितना है, color क्यों change होता है soil का? Due to availability of natural minerals in that area, they get reacted with different fertilizers and chemical and change the color. Okay. टेक्सचर, कोई स्टिकी होता है, कोई कोर्स होता है, कोई स्मूथ होता है ना। और एज कितना पुराना है, एंड सर्टेन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट इज एल्यूविलियम, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटिट्रेट सॉइल, एरिड, ये 5 तरीके के मेन सॉइल, एंड लास्ट इज फॉरेस्ट सॉइल, या उसमें ज्यादा 5-6 तरीके के सॉइल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एल्यूविलियम सॉइल। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है एल्यूविलियम सॉइल। नाउ दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। लास्ट ईयर याद है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर पढ़ा था, उसमें नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा था। किसी को भी याद आ रहा है? मैंने ही पढ़ाया था। यस मैम। यस मैम। नॉर्दर्न प्लेन्स में ज्यादातर कैसा सॉइल होता है? एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम सॉइल की फर्टिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है। और इंडिया में मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको वो सॉइल मिलेगी ड्यू टू द वेरी गुड रिवर सिस्टम्स। मैम ब्रह्मपुत्र, हाँ, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These are the 3 major river systems. Yes? And its tributaries play an important role in the fertility of soil in the northern plains. Yes? Are made up of alluvial soil. These have been deposited by the 3 important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. अब आपके नेक्स्ट पेज में एक मैप दिया है, उसमें जितना भी लाइट ग्रीन कलर है वो सारा आपका एल्यूविलियम सॉइल है। अगर आप देखोगे तो पूरा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स आ गया है ईस्ट तक, फिर थोड़ा सा आपका कॉरिडोर गुजरात, राजस्थान होता हुआ गुजरात में भी है,
और टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के पास एक पतला सा कोस्टल एरिया में, देखो लाइट ग्रीन कलर है सारा पूरे कोस्टल एरिया में. कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alluvium soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri. The alluvium soil consists of various proportion of sand, silt, and clay. अब इसके अंदर sand का एक परसेंटेज होता है, silt का एक परसेंटेज होता है और clay का. इन तीनों के प्रॉपर रेशियो के मैनेजमेंट की वजह से, ओके, कॉम्बिनेशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहती है. As we move inland towards the river valleys, soil particularly appears somewhat bigger in size. अब inner valleys, जब river system में जहां से ऊपर से जब rivers आते हैं and from mountain से जब वो सीधा नीचे आते हैं plains पे, और जहां से वो plains में आते हैं, वो valley होती है आपकी, ये valley रहेगी. यहां से अगर river आ रही है तो ये बीच में से वैली रहेगी. यहाँ पे ये वैली से आप जो भी बना रहे हो दिख नहीं रहा है. दिख नहीं रहा. एक मिनट बेटा, मैम थोड़ा जूम करो स्क्रीन. मैं जूम नहीं कर सकती, तुम मुझे पिन करो. मैम पिन ही है, या तो फिर कैमरा नजदीक ले लो. हम पिन करने के बाद भी. अब Yes, ma'am. क्लियर हो गया है. देखो ये इतना समझना है, यहाँ से रिवर निकलती है, ये वैलीज में आती है, फिर नीचे यहाँ पे प्लेन्स में जाती है. बट जब यहाँ वैली से होती हुई सीधी यहाँ नीचे स्टार्ट होती है ना, मुझे सिर्फ उतना समझाना है, ड्राइंग करके को दिखाना नहीं है. वहां क्या होता है, एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड्स द रिवर वैलीज, ओके, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर्स समवॉट बिगर इन साइज. क्योंकि माउंटेन से आती है तो रिवर का फ्लो ज्यादा होता है, ये एरिया स्टीप होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो काफी सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स लेके नीचे उतरती है. आर यू गेटिंग इट? मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ. इन द अपर रीचेस ऑफ रिवर वैली इट मीन्स नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल इज कोर्स. यहाँ पे जब ये टूट यहाँ नीचे आके जब ऐसे टर्न करके जाएगी, सबसे पहले जहां नीचे आती है ना बेटा, वहां पे जो सॉइल शुरू में फॉर्म होता है वो कोर्स होता है. क्यों? क्योंकि ये पहाड़ों से बहुत कुछ लेके आती है, जिसमें पेबल्स, स्टोन्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, चिप्स ऑफ रॉक्स होते हैं. तो यहाँ का जो सॉइल होता है वो कोर्स. कोर्स मींस रफ, दरदरा हम बोलते हैं ना, खुदरा टाइप का, स्मूथ नहीं होता है. यहाँ स्टार्टिंग में इधर, ओके, सिर्फ ये क्वालिटी बता रही हूं. Such soils are more common in the pediment plains such as Duar, Chos and Tehri. ये जगह का नाम है, सिर्फ याद रखना है. Apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age. अब ये हमने उनके उसके ऊपर डिस्क्राइब किया था, साइज के ऊपर, कि यहाँ के जो सॉइल होगा उसके जो पार्टिकल्स रहेंगे वो थोड़े से बड़े रहेंगे और रफ रहेंगे. बट नॉर्मली सॉइल अपनी एज की वजह से क्लासिफाई होता है, ओल्ड एंड न्यू. ओके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ओल्ड एंड न्यू याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट. ये जो कमिंग पैराग्राफ है आपको मार्क करना है तो पूरा मार्क कर दीजिए. Apart from the size of their grains or components, soil is also described on the basis of their age. According to their age, alluvium soil can be classified into two, old and new. Old alluvium is known as Bangar and the new alluvium is known as Khadar. ये नाम याद रखने. Old alluvium is known as Bangar and the new alluvium is known as Khadar. ओके, समझ आया इतना? यस मैम. ना Yes, अब हमें ma'am. समझना है कि ओल्ड और न्यू कैसे होता है. इतना समझ में आ गया. दो तरीके के सॉइल होते हैं, एक ओल्ड होता है, एक न्यू होता है, और इनके अपने अपने नाम है. इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब क्लासिफाई कैसे करेंगे? Yes, ma'am. कौन सा ओल्ड है? अब सॉइल की कोई एज थोड़ी होती है. हमको तो पता चलता है जैसे हम बच्चे थे, बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, तो पता चला कि हमारी एज बढ़ गई है. फिर हमारा तो बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है, फिर बोर्ड का सर्टिफिकेट भी होता है.
तो हमारी एज आ जाती है। कैसे? आधार कार्ड भी होता है। अब सॉइल का तो ना आधार कार्ड होता है, ना बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ना उसके से बाल सफेद हो जाते हैं, ना वो बूढ़ा होता है, तो कैसे पता चलेगा सॉइल टेस्ट? ओके, नाउ द बांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ खांगर नोड्यूल्स। दे ओके, अब बांगर मीन्स ओल्ड सॉइल। अब इसके अंदर क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स इसके अंदर हायर कैपेसिटी है किस चीज की? KANKER, कंखर, और वर्ड है नोड्यूल्स। कभी सुना है? कभी सुना है ये वर्ड? यस मैम। नो मैम। नो मैम। शुक्र है, कुछ बोले तो सही प्रभु। कंकड़ वही है ना? हाँ, कंकड़ है ना कंकड़ क्या है? मैम? वही तो आपने जो बोला, नोड्यूल्स। हाँ, पर क्या नोड्यूल्स? नोड्यूल्स का मतलब क्या होता है? मैम छोटे छोटे पत्थर। मैंने शायद ऐसा कुछ नहीं बोला था कि नोड्यूल्स का मतलब। ना, ये जो कंखर होता है, ठीक है, इट इज अ टर्म यूज्ड इन इंडिया। ध्यान से सुनो, इट इज अ टर्म यूज्ड इन इंडिया, ओके, फॉर लेयर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो ये मिनरल्स आ रहे हैं माउंटेन से, जो मिनरल्स आ रहे हैं कर रहे हैं, जब वो रिवर्स होते हैं तो उन मिनरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट करके एक मिनरल आता है जो नेचुरली अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, जो वाटर बॉडी के साथ विद द रिवर्स इरोड होके आ जाता है। अंडरस्टूड? पहली चीज तो ये समझ लो, ठीक है ना। नाउ जब यहां से नीचे रिवर उतरती है, आपको पता है सबसे पहले भारी चीज होगी वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी। फिर यहाँ जब प्लेन्स में रिवर फ्लो करेगी तो धीरे धीरे जो भी मिनरल्स केमिकल्स लेकर आई है वो धीरे धीरे डिपॉजिट करती जाएगी यहाँ पे, कि नहीं? अब यहाँ जो स्टार्टिंग का सॉइल होता है, कोई भी चीज में आप देखना, स्टार्टिंग में मिनरल डिपॉजिशन ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाए। तो जिस एरिया में ये कैल्शियम कार्बोनेट का मिनरल कम होगा, ठीक है, उसको हम न्यू सॉइल बोलेंगे, क्योंकि वो रिसेंट बना हुआ सॉइल होगा। जिसमें ज्यादा होगा उसको हम ओल्ड सॉइल बोलेंगे। जो भांगर सॉइल है उसके अंदर कैल्शियम, ये खांगर नोड्यूल्स का डिपोजिशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू खादर, इसीलिए उसे ओल्ड एल्यूविलियम सॉइल बोलते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन भांगर। मीन्स बांगर ज्यादा फर्टाइल है ना। ठीक है, सो यू नीड टू, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगी। इसका एक ना वीडियो आ रहा है कि कैसे प्रोसेसिंग होता है ना, तो मैं एक बार देख लूंगी। अगर मुझे वो अच्छा वाला मिल जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में आई विल बी ट्राइंग टू शो यू दैट वीडियो। आई थिंक सो दैट विल हेल्प यू टू क्लियर मोर बेटर द थिंग्स। मैम। हाँ बोलो। मैम लास्ट लाइन में तो ऐसा लग रहा है कि खादर ज्यादा फर्टाइल है। सी, मैं एक मिनट देखो, इसमें कैसा है, जो पुराना सॉइल है ना भांगर, वो कम फर्टाइल है। उसका रीजन है, ऐसा समझाती, कम फर्टाइल है उसका रीजन है ड्यू टू खांगर नोड्यूल, विच इज, खांगर नोड्यूल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है एंड विच इज नॉट गुड फॉर फर्टिलिटी। तो जो भांगर सॉइल है उसमें ये ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और खादर की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी न्यू सॉइल के। एक मिनट, मैं देख रही थी, मैंने कहा लास्ट ईयर भी बच्चों को दिखाया था मैंने ऑनलाइन क्लासेस में, तो मैंने कहा कहीं सेव किया हुआ पड़ा हो ना वो मेरे पास, तो दिखा दूं, ऐसा और कुछ नहीं। वो एक बार मेरे पास चेक देख रही थी।
वो ये है कि खादर और जो बैंगल सॉइल है ये दोनों के दोनों एलिवेट सॉइल है और ये एलिवेट सॉइल के टाइप है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज। सॉइल को माना जाता है, ठीक है, फर्टाइल है। एक मिनट, just I was checking, नहीं मिल रहा है अभी मुझे। I'll just go through it later on if I'll get it. Okay, now alluvial soil as a whole are very fertile. Mostly this soil contains adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses. यानी ये एरिया में अगर आप देखो तो वो सारी चीजें उगती हैं जो हम एक ह्यूमन बींग्स को सर्वाइवल के लिए चाहिए। Sugar can give you sugar and other related products. Paddy means your rice, wheat, cereals and pulses. आ गया सब कुछ? Yes. Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. Soil in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. So there, even in alluvial soil, you will find certain soil more alkaline. What is alkaline? ये आपका बहुत अच्छा केमिस्ट्री का टॉपिक है, आप पढ़ के भी आए हो। अल्कलाइन क्या होता है? व्हाट इज हाँ मैम, उसका नेचर बेसिक होता है मैम। अरे बेसिक नेचर होता है, पर होता क्या है उसमें, मैं वो पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें वो पूछ रही हूँ बेटा, वो तो मुझे पता है उसका वे। See, alkaline is a basic metal which थोड़ी सी आपकी फर्टिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। तो इसको आप फर्टिलाइजर या कुछ केमिकल आपके लैंड में पानी में मिला के डाल देने से इसका परसेंटेज, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म करने की जरूरत है, कभी कभी क्या होता है ड्यू टू अदर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स अल्कलाइन का परसेंटेज आपके सॉइल में बढ़ जाता है, तो आपकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। आजकल सॉइल टेस्टिंग होती है, अगर ऐसा आ जाए, है ना, अब जैसे हमारी बॉडी में वायरस अगर कभी कोई भी तरीके का इन्फेक्शन घुस जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, क्यों? इन्फेक्शन को रोकने के लिए। सो इस तरीके के आप ट्रीटमेंट करके ये अल्कलाइन का परसेंटेज गिरा दोगे तो धीरे धीरे आपकी फर्टिलिटी फिर से रिस्टेन हो जाएगी। ओके, नाउ ब्लैक सॉइल, these soils are black in color and are also known as Ragur soils. Another name of this is a 1 marker question. Give the another name of black soil. Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. This type of soil is typical of the Deccan Tract region spread over the northwest Deccan Plateau and it is made up of lava flows. They covers the, देखो अब इसमें कैसा होता है, आपको पता है ना, जब वैल्केनिक इरप्शन होता है तो लावा में बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं। Yes? Do you agree? Yes, ma'am. Yes. जब वो मिनरल्स निकलते हैं तो जैसे आपका ये लावा बर्स्ट हो रहा है तो क्या होता है, एक मिनट, यहां से आपका लावा बर्स्ट होता है, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, ऐसे आता है, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फ्लो करता हुआ जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनते जाते हैं और जब ये कूल डाउन होते हैं तो ये लेयर्स के लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं जिसमें लॉट मच ऑफ मिनरल्स आर देयर। सम आर हार्मफुल एंड सम आर गुड। ओके, दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, Malwa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and extended in the southeast direction along with Godavari and Krishna valleys. So in simple language, black soil is mostly found in plateaus. Like alluvial soil is found in northern plains, black soil are mostly found in plateaus. Okay? Okay, ma'am. The black soil are made up of extremely fine clay material. क्ले मतलब कैसा होता है, जो चिकनी मिट्टी नहीं होती थी, पोर्टर्स यूज करते हैं। आजकल तो बच्चे क्या करते हैं, स्टोर में रेडीमेड क्ले आते हैं बेटा आपके यूज करने के लिए,
हम जब छोटे होते थे ना तो हमारे यहाँ रेडीमेड क्ले नहीं होते थे कभी। कोई बिल्डिंग बन रही हो या हमारे टाइम में क्या खुली जगह बहुत होती थी, तो आप थोड़ा ज्यादा नीचे तक ऐसे डिगिंग करोगे ना तो थोड़ी सी गीली गीली चिपचिपी सी ब्लैकिश कलर की मिट्टी निकलती थी। तो उससे हम छोटे छोटे बर्तन और खिलौने बनाते थे, जो आजकल आप लोग क्ले से बनाते हो, कलरफुल क्ले मिलता है बाहर, है ना। तो इस एरिया में ब्लैक सॉइल का जो सॉइल है वो थोड़ा क्ले ही होता है, ना ड्राई होता है बहुत ज्यादा, ना बहुत हार्ड होता है। जैसे क्ले थोड़ा सा ऐसे कुछ कुछ ऐसा सॉफ्ट होता है ना, वैसा होता है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ओके, पहली चीज, क्यों सॉफ्ट होता है? क्योंकि वो अपने अंदर पानी बहुत टाइम तक रख सकता है। हर सैंड की क्वालिटी नहीं होती है कि वो पानी बहुत देर तक होल्ड कर सके, समझ आया? तो जब बहुत देर तक किसी चीज में पानी रहेगा तो वो अंदर तक उसका मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है, तो वो ऐसे रिएक्ट करता है। ओके, in addition they are rich in soil nutrition such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. These soils are generally poor in phosphoric content. They develop deep cracks during the hot summer. अब देखो इसकी सेकेंड क्वालिटी, नॉर्मली ये बहुत गीला और ऐसा वाला होता है, बट जैसे ही ड्राई सीजन आएगा और बहुत ज्यादा गर्मी होगी, आपके पीछे वाले पेज में दिया है ब्लैक सॉइल का पिक्चर, पूरे ऐसे से क्रैक्स हो जाते हैं, एकदम जमीन फट गई और ऐसा दिखता है। क्यों? क्योंकि जब इसका मॉइस्चर उड़ जाता है तो जो सैंड जुड़ा हुआ था वो बीच बीच में से मॉइस्चर उड़ जाता है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अब और जैसे ही बारिश होगी, आपको पता है कोई भी चीज टूटी हुई होगी जमीन में, जहां आपने खड्डा खोदा होगा या जगह होगी, आप उसमें पानी डालोगे तो बहुत जल्दी तक नीचे पेनिट्रेट कर जाता है। Yes, ma'am. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. Aeration of the soils मतलब क्या होता है? वो क्रैक नीचे तक हो जाते हैं, अंदर तक। जैसे बारिश होती है पानी बहुत जल्दी नीचे तक चला जाता है, और उसके बाद आप अगर प्लोइंग करते हैं, प्लॉफिंग करते हैं लैंड को अपने, ठीक है, टिल्ट करते हैं, जैसे नहीं तो खोद के आप करो या ट्रैक्टर से पानी जाने के बाद, तो बहुत जल्दी एरिएट, यानी उसके अंदर सारे मिनरल्स, केमिकल फिर से रीजनरेट हो जाते हैं, जो ड्राइनेस की वजह से चले गए होते हैं, और वो फिर से बहुत जल्दी एरिएट होके अपने नॉर्मल टाइप में आ जाता है। They develop deep cracks during the hot weather, which helps to proper aeration of soil. These soils are sticky when wet and difficult to work unless tilted immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. अब इसका एक ड्रॉबैक भी है, जैसे बारिश होगी ना बेटा, गैप होते हैं, गैप में से पानी फट से नीचे चला जाता है और ये चिपचिपा होना शुरू हो जाता है। अगर आप बारिश के सीजन में, आप देखना पैडी हुआ या कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि जैसे ही बारिश होती है ना बेटा, वो लोग वेट नहीं करते कि बारिश रुकेगा फिर हम जाके उसको टिल्ट करेंगे, वो बारिश के अंदर ही टिल्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? नहीं तो ये इतना ज्यादा चिकना हो जाएगा और स्टिकी हो जाएगा कि बाद में आपको कुछ काम ही नहीं कर पाओगे उसके अंदर, सिर्फ आप स्लिप होते हैं और कोई भी मशीनरी या ट्रैक्टर चलता नहीं। So as soon as the water is pouring down, you need to tilt it. आपको पूरा उसको मिला देना पड़ेगा तुरंत के तुरंत। You cannot wait for the rain to stop and then do the work. Okay? And aeration का meaning? हाँ? Aeration. Aeration मतलब क्या होता है कि आप सॉइल को, जैसे ड्राई हो गया तो क्रैक्स हो गए, अब उसके बाद कैसा, जब पानी वानी आएगा तो आप फिर से कोई चीज को मिला के उसकी क्वालिटी को ओरिजिनल में ले आते हो। जैसे इसका स्टिकी नेचर था मिनरल से, तो पानी वानी जब पड़ेगा तो फिर से वो कल्टीवेट करने की पोजीशन में आ जाएगा फटाफट। Yes, ma'am. Now next is red and yellow soil. Red soil develops on crystalline igneous rock in the areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. Yellow and red soils are formed in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plains, along the pediment zone of reddish color, along the pediment zone of Western Ghats. These soils developed a reddish color due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. अब ये हमें कहाँ मिल रहा है? Deccan Plateau में, which is full of iron ores. तो जब ये आयरन ओर बारिश, पानी और दूसरे फर्टिलाइजर्स के साथ फ्यूज होते हैं या केमिकल रिएक्शन होता है,
तो हमें पता है लोहे के ऊपर अगर बहुत देर तक आप आयरन के ऊपर पानी रखोगे तो आपको रस्ट जैसा रेडिश कलर मिल जाता है। इसीलिए इस जगह का फर्स्ट में रेड होता है, फिर जब ये लैंड धीरे धीरे सूखने लगता है या वो पानी इवोपरेट होता है तो बाद में ये येलो हो जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। ज्यादा पानी अंदर चला जाता है तो हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाता है। नाउ laterite soil, laterite has been derived from the Latin word later which means brick. The laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall. ऐसे कौन से एरियाज होते हैं जहाँ टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है? Southern India. Southern India. Okay. मैम कोस्टल एरिया States like Karnataka and Tamil Nadu. कोस्टल एरियाज में भी होगा वहाँ टेम्परेचर, बिकॉज दीज कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया आर नियर टू द इक्वेटर। ठीक है ना, तो इक्वेटोरियल फॉर्म ऑफ क्लाइमेट होता है जहाँ डायरेक्ट सनरेज आती हैं और ये समुद्र के किनारे हैं, तो ये सनरेज की वजह से इवोपरेशन ज्यादा होता है तो रेनफॉल भी ज्यादा होता है और टेम्परेचर भी हाई रहता है। This is a result of infinite leaching due to the heavy rain. Humus content of the soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to the high temperature. Laterite soil are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizer. Means ये जो soil है यहाँ पे fertility बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीजें उगा नहीं सकती, but still with the development of science and technology, yes, if you use proper fertilizers, yeah, and manure, definitely you can cultivate. Normally बोलते हैं ना coastal areas में agriculture नहीं हो सकता because हर एक grains को उतनी ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती है और बहुत ज्यादा बारिश होने से water बहुत सारे minerals को upper layer के soil को erode करके ले जाता है। The soil are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, and the hilly areas of Odisha and Assam. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Kerala are more suitable for crops like cashew nuts. ओके अब एक रह गया एरिड। एरिड आपको पता है डेजर्ट एरिया होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, यस। और डेजर्ट में ऑलवेज वेजिटेशन लेस होता है बिकॉज जो सैंड होता है वो बहुत ड्राई होता है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, सॉरी ह्यूमिडिटी क्या क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिडिटी नहीं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है और मॉइस्चर कम होता है उसके अंदर। Arid soil ranges from red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline in nature. In some areas, the soil content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. The lower zones of the soil are occupied by Kangar because of the increasing calcium content downwards. The Kangar layer formation in the bottom horizon restricts the infiltration of water. After proper irrigation, these soil became cultivated as has been in the cases of Western Rajasthan. So it's simple thing. These areas where is a very less vegetation and the vegetation which you can grow, okay, which you can grow, they need lot of investment, time and human effort. Yes. We have started to still do some type of these irrigation facilities in the Western Rajasthan. Forest soil. These soils are found in the hilly and the mountain areas where sufficient rainforests are available. The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loomy and silty in valley sides and coarse and grained in the upper slopes. क्यों ऊपर के समय कोर्स मतलब मैंने बोला था थोड़ा सा दरदड़ा और रफ होता है क्योंकि माउंटेन स्लोप्स रग्ड होते हैं तो स्मूथ नहीं होते। जब वैलीज में आ जाएंगे नीचे तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। In the snow covered areas of Himalayas, these soil experience denudation and
are acidic with low humus content. The soil found in the lower parts of the valleys, particularly in the river terraces and alluvium fans, are very fertile. Now come to the map. हाँ बोलो मैम। डेनुडेशन का मीनिंग? डेन्यूनेशन नहीं पढ़ा 6th 7th में? किसी को पता है? किसी को भी पता है इस क्लास में डेन्यूनेशन क्या होता है? नो वर्ड है इससे रिलेटेड। नो मैम। डिक्रीज। कोई बोल रहा था, क्या बोल रहा था? डिक्रीज। ओके, सम इट्स अ वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ लेयर, यानी ऊपर का जो लेयर है वो टूट जाता है या इरोड हो जाता है या लाइक वाटर से, ग्लेशियर से। सो काफी सारे उसके मिनरल्स और गुड पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे, और यही रिवर्स नीचे लेके जाए, सो उसके फर्टिलिटी कम हो जाती है। यहाँ क्या लिखा है? इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयस दीज सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूनेशन। क्यों स्नो कवर्ड एरिया में? ग्लेशियर्स मूव करते हैं, वहीं से हमारी रिवर ओरिजिनेट होती है। स्नो मेल्ट होता है तो रिवर, जब स्नो मेल्ट होता है तो वो सारे मिनरल्स साथ में लेके जाती है उसके। अंडरस्टूड? इट्स अ प्रोसेस ऑफ इरोडेशन, लेके नीचे उतर जाती है। देखो, आप ऊपर किसी चीज पे बर्फ रखो, घर में से आइस क्यूब निकालो, जब वो धीरे धीरे बर्फ मेल्ट होगी तो अगर वो बर्तन उल्टा है तो साइड साइड से गिरना शुरू हो जाएगा पानी। यस मैम। ठीक है ना? अब अगर आप उसके साथ में कोई भी लाइट चीज रखोगे तो जब वो पानी नीचे आ रहा है तो वो सब उसको ले लेके आ जाएगा साथ साथ में। हाँ। So in the same way, it erode all the minerals to the down areas. ओके मैम। अब हमारा एक ही टॉपिक रह गया, सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, और फ्यू क्वेश्चन आंसर्स हैं। मोस्टली नेक्स्ट, आज फ्राइडे है ना, मंडे की क्लास तक मैं वर्कशीट दे दूंगी इस चैप्टर की। बट मैं अब ये चैप्टर खत्म करने के बाद, मैंने कौन सा चैप्टर बोला था मैं स्टार्ट करूंगी पहले? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, ठीक है ना? ये चैप्टर खत्म होते ही मैं फेडरलिज्म स्टार्ट कर दूंगी। ओके मैम। अब मुझे पता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, आई थिंक सो। आपको संदीप सर के यहाँ से रचना सागर मिली है? नो मैम, अभी तक नहीं मिली। नो मैम, अभी तक मैथ्स और साइंस का सिर्फ स्पाइरल मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला। मैथ्स और साइंस का स्पाइरल मिला है, बाकी कुछ तो मिल जाएगी। मैम मुझे रचना सागर मिल गई है। अच्छा शांत, हाँ सुनो, जिसको रचना सागर मिल गई है वो रचना सागर घर जाके खोलेगा, ठीक है? और नहीं होगा तो मैं ग्रुप में भेज देती हूँ और उनको बोलती हूँ आपको भेज देगा। टाइप्स ऑफ सॉइल करके ना बहुत अच्छे से उसके अंदर ये जो सब चीजें आपको कंफ्यूज कर रही है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में 6 में बहुत अच्छा फ्लो चार्ट दिया है। शांति से उसको पढ़ोगे ना बेटा, तो ये जितने सारे कंफ्यूजन है ना सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ दिखा रही हूँ, ये आपको टेबल दिख रहा है यहाँ पे? यस मैम। ये टेबल दिख रहा है? हाँ। ये टेबल में सारे पॉइंट्स हर सॉइल के टाइप के आ रहे हैं। ओके, अब इसमें ज्योग्राफी में किसी भी स्कूल में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज करके चैप्टर चलाया है? नो मैम। ओके, एग्रीकल्चर का चैप्टर चलाया है किसी भी स्कूल में? नो। नो मैम। ओके, और एक हो गया पावर शेयरिंग के बाद फेडरलिज्म, ठीक है? फेडरलिज्म के बाद देखते हैं उसके बाद क्या चलाएंगे। और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स में? नो मैम। नो मैम। तो हम ही ज्यादा भाग रहे हैं क्या? नहीं मैम, बस खाली एक ही चैप्टर में फेडरलिज्म हो जाए फिर मैम हो जाएगा मैम स्कूल का बराबर।
मैम मेरे स्कूल में चैप्टर 2 हिस्ट्री का खत्म हो रहा है अभी। कौन सा चैप्टर 2? नेशनलिज्म इन इंडिया। यस मैम। फेडरलिज्म के बाद मेरी भी इच्छा नेशनलिज्म इन इंडिया चलाऊंगी, या डिपेंड करता है बाकी बच्चों का क्या चल रहा है, बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ज्योग्राफी का, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये है और चैप्टर भी है बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई। तो मैं उस हिसाब से ठीक है। इसके बाद हम पहले फेडरलिज्म करेंगे। फेडरलिज्म मतलब मंडे को मुझे चाहिए होगा पूरा क्लास, क्वेश्चन आंसर, ये एक टॉपिक और वर्कशीट डिस्कस करने को। नेक्स्ट 2 वीक्स 2 क्लासेस होंगे नेक्स्ट वीक में, उसके बाद वाले क्लास में फेडरलिज्म। 3 क्लास तो मुझे चाहिए फेडरलिज्म में मिनिमम। तो हो जाएगा ना बेटा आर्य, आपके एग्जाम से पहले तो खत्म फेडरलिज्म? जुलाई में है ना बेटा आर्य आपके एग्जाम्स? मैम मेरे एग्जाम्स तो मैम अभी तक डिक्लेयर भी नहीं हुए, मेरे तो अभी वैकेशन चालू है ना। अच्छा, मुझे लगा डिक्लेयर हो गए। डिक्लेयर हो गए पर नेक्स्ट है 9 मतलब या कई बार होता है डेट्स नहीं हुई होती हैं, बट 9 जुलाई से मैम 9/7 मोस्टली स्कूलों में जुलाई 1st और 2nd वीक में यूटी हो जाएंगे। मैम हमारे स्कूल में 3rd जुलाई से शुरू हो रहा है। मैंने क्या बोला? 1st और 2nd वीक बोला बेटा आपको, ठीक है? यस मैम। चलो, सो आई डोंट हैव एनीथिंग नाउ, सो यू पीपल कैन लीव। बाय मैम। Bye.